मीन्स अगर आपका नहीं हो रहा है, सो लाइक यू शुड मोर फोकस ऑन द डेव पार्ट। आपको अपना रेज्यूमे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लाइक फ्रेशर्स जब होते हैं लोग, तो उनको थोड़ा अपना डेवलपमेंट स्किल्स इंप्रूव करने चाहिए अपने रेज्यूमे में। बहुत ज़्यादा थोड़े, एटलीस्ट थोड़े प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स डालने चाहिए, तो बिल्कुल। जिससे एक इम्पैक्ट क्रिएट हो। एंड यू शुड लाइक बहुत सारे मतलब है, अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक Naukri.com, एंड वहाँ पे आप अप्लाई, लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच करिए, रेफरल्स लीजिए। बिल्कुल। सो आई वुड से ये अगर आप लाइक डेली 50 कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, तो 2-3 कंपनी से डेफिनेटली कॉल आएगा। बिल्कुल। कि स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, फर्स्ट थिंग तो वही है कि मतलब एक्सप्लोर करो अपने इनिशियल डेज में, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में वर्क करो। लाइक आई वर्कड इन लाइक एंड्रॉइड डेवलपमेंट आल्सो, इन वेब हम्म, डेव, एंड बैकएंड में भी मैंने काफी काम करा जावा में। तो या आई हम्म, एक्सप्लोर्ड इन लाइक एवरी फील्ड। तो या फिर उसके बाद में आपको एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप किस में कर सकते हो अच्छे से। So it is not related to job, yeah. It is more like, yeah, you are doing it for yourself. So एग्जैक्टली। so I completed Java. So I gained like 5 star in that. ओके, So ग्रेट। yeah, I believe if you want to master a language, so like the best way is to practice, and HackerRank gives you that. Like HackerRank is a good platform. ओके, So if you are becoming like 4 or 5 star there, so yeah, काफी confidence आ जाता है वहां से, ग्रेट, ग्रेट। burn stack. So yeah, and apart from that, I also used to do some comparative programming. So I basically used to solve code forces, and ओके। later on, like in 11th standard, like I took CS. So there फिर वहां से थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आया। Hello everyone, hope you all are doing good. And today we have Abhigyan Sharma with us, who has almost 1.5 years of experience, and he has joined Infosys right after his college. And in graduation, he has done BCA. So let's welcome Abhigyan Sharma. And Abhi, can you just brief about yourself? Yeah, so hi everyone, myself Abhigyan Sharma. So like I'm from Rajasthan, and like basically I'm from commerce background, and like after that I went to Jaipur, and I enrolled myself in BCA course. So yeah, so the journey is very journey was very good. So I mean, I've learned many things, and I like in my initial days in my like 11th 12th, like मेरा initially aspiration वो था CA CS. So I wanted to pursue my career in that path. But Okay. later on, like in 11th standard, like I took CS. So there फिर वहां से थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आया, and like Okay, I so started exploring, and then in you 11th know 12th tech. आपके पास कॉमर्स थी, and at that time you were planning to become a CA, but after that Yeah, आप yeah. like just have you have Mm-hmm. optional of computer science, तो वहाँ पे आपका Yeah, इंटरेस्ट yeah. डेवलप हुआ, and that's why you went for BCA. Exactly. ग्रेट, Yeah. ग्रेट। Yes. तो Yes. BCA में आपकी जर्नी कैसी रही? So yeah, journey was great. Like मैंने काफी काफी चीजें सीखी, and I developed many projects and learned many new technologies. So yeah, journey काफी अच्छी थी। सो आपने जैसे बताया आपने न्यू टेक्नोलॉजी सीखी, तो ये सेकेंड ईयर से आपने स्टार्ट किया या फिर फाइनल ईयर में, जब ऐसे डर लगने लगता है यार प्लेसमेंट का टाइम आ रहा है एंड हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, तो आपने उस डर से सीखा? Not exactly. Means I started learning in my from my second year. So like starting में बहुत ज़्यादा issues आए। Means I was very afraid, like कैसे होगा, and because एक FOMO रहता है थोड़ा कि you are studying with like engineers, and you are from commerce background, and so वो था starting में, but हाँ। later on फिर I explored, and like I learned Java, so I have done backend in my college time. I've created some like good projects. Then later on, I learned full stack technologies, ग्रेट। Burn stack. So yeah, and apart from that, I also used to do some comparative programming. So I basically used to solve code forces and hacker rank. Yeah, ओके। तो so आपने that जैसे जावा थोड़ा जब base. सीखी, Yeah, जावा yes. कहाँ से सीखी एंड क्या क्या आपने रिसोर्सेज यूज किए सीखने के लिए?
या फिर फ्री यूट्यूब से? uh, yeah, free. I ओके। was Code with Harry हम्म। सर की एक प्लेलिस्ट है, so ग्रेट। मैंने वो कंप्लीट करा था। Yeah. हम्म। एंड लेटर ओके। ऑन फिर प्रैक्टिस के लिए आई प्रैक्टिस ऑन हैकर रैंक। सो हम्म। हैकर रैंक में बेसिकली काफी काफी सारी लैंग्वेजेस के सेक्शंस हैं। सो आई कंप्लीटेड जावा, सो आई गेन लाइक 5 स्टार इन दैट। सो ओके ग्रेट। yeah, I believe if you want to master a language, so like the best way is to practice, and HackerRank gives you that. Like HackerRank is a good platform. ओके So if you are becoming like 4 5 star there, so yeah, काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है वहां से। ग्रेट। सो अगर अभी इस टाइम कोई बंदा बीसीए या बीएससी कर रहा है एंड ही और शी इज नॉन बीटेक, तो आप क्या सजेशन दोगे, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? के सेक्शंस हैं। सो आई कंप्लीटेड जावा, सो आई गेन लाइक 5 स्टार इन दैट। सो ओके ग्रेट। yeah, I believe if you want to master a language, so like the best way is to practice, and HackerRank gives you that. Like HackerRank is a good platform. ओके So if you are becoming like 4 5 star there, so yeah, काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है वहां से। ग्रेट। सो अगर अभी इस टाइम कोई है एंड कहाँ से करनी चाहिए? Mm-hmm. Mm-hmm. So yeah, so basically for a BCA guy, I mean, I would say interviews इतने rigid नहीं होते हैं। Like हम्म। they don't ask like heavy DSA, but yeah, I would say if someone wants to get into a good company, so like थोड़ा उनको DSA का knowledge भी होना जरूरी है। So I would say हम्म। थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। लाइक इफ ही सॉल्विंग GFG एंड हैकर रैंक, हाँ दैट्स हाँ। गुड। एंड ओके। लैंग्वेज का ग्रास्प तो होना जरूरी है, एंड मेन थिंग इज डेवलपमेंट। सो ओके। वी शुड मोर फोकस ऑन द डेवलपमेंट साइड। वी शुड क्रिएट हम्म। सम गुड प्रोजेक्ट। ओके। सो लाइक आपने बताया आप इन्फोसिस में आपका प्लेसमेंट हुआ था, तो दैट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन या उससे पहले आपके रिजेक्शंस हुए थे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में? या इनिशियली काफी रिजेक्शंस हुए, एंड आई मीन काफी सीखने को मिला। आई इंटरव्यूड इन मैनी कंपनीज, but I also got offers from multiple companies like Hexaware, Wipro, and ओके। TCS. I was interviewing in TCS, so mid में ही I got a offer from Infosys, and so I just like मैंने ओके। वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। So yeah. सो विप्रो में एक WILP करके लाइक वर्क हम्म इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम होता है, तो आपने वो क्यों लाइक हम्म छोड़ा? सो एक्चुअली उसमें कैच ये था, लाइक हेक्सावेयर से भी मुझे विल्प का ही वो मिला था ऑफर। सो हम्म। दे डोंट बेसिकली अलाउ कॉमर्स स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई ओके। आई वाजंट एबल टू। एंड Later on, इन्फो after HR round, I got informed that yeah. ओके ओके। सो लाइक विप्रो एंड हेक्सावेयर दे डोंट अलाउ कॉमर्स स्टूडेंट? Yeah, because basically this will program is integrated with BITS Pilani. हम्म। So basically BITS only allows science graduates. ओके। एंड व्हाट वाज द क्राइटेरिया फॉर इन्फोसिस? Yeah, so criteria was basic, like you should have like at least 60% in your 10th and 12th, and yeah, on an average of 60% in your graduation. ओके ओके ओके। एंड व्हाट वाज द लाइक इंटरव्यू प्रोसेस लाइक इन इन्फोसिस? व्हाट डिफरेंट राउंड्स Mm-hmm. वर देयर? Mm-hmm. So there were 3 rounds. First was, online assessment. Second one was technical, and then HR. So online assessment was little hard. They mostly focus on aptitude. So yeah, and after that, there were some questions on aptitude, and some were technical, like pseudo codes, basic debugging questions. And बट after that, yeah, yes. आपके आपके जो बीसीए का सिलेबस है एंड जो आप बताया Mm-hmm. लाइक आपने जो जावा प्रिपरेशन एंड डीएसए प्रिपरेशन की थी, तो उतना बहुत है? Yeah, that is more than enough. That is more than enough, I would say. ओके। So basically, in the technical round, focus on development skills. Like मुझसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे थे मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड. So I would say if you are good in the development part, then like it is a cakewalk.
And Okay. although they ask some basic implementation question like recursion and implementer, stack, queue, linked list. So that's it. एंड जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. Yeah, exactly. That is the main thing. एंड टेक्निकल राउंड्स में और आपसे लाइक और क्या क्वेश्चंस पूछे अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल पार्ट? Apart from technical part, like there were some behavioral questions, like some HR based question. I don't exactly remember that, but yeah, there were some like behavioral questions in the technical round also. ओके. And after that, there was a HR round. So it was a just short round. Like they just asked some standard HR questions, and after that they asked like why you want to join our organization, and that's it. एंड इन्फोसिस में आपका ये ऑन कैंपस था या आपने ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई किया था? Yeah, it was a pool campus drive, I would say. So ओके. yeah, we can say it was a on campus. Yeah. ओके. एंड एट द एंड कितने बंदों का सिलेक्शन हुआ था? Like from my batch, I think around 100 students applied, and in the technical round, 7 या 8 students ही select हुए थे, and after that final offer 3 या 4 को ही मिला था. ओके. सो एचआर राउंड में भी उन्होंने रिजेक्शन किया था? Yeah, yes. ओके. ओके. No, not in HR round. Technical के बाद they got the rejection. ओके. ओके. सो Mhm. मतलब 7 या 8 का टेक्निकल हुआ था एंड आफ्टर दैट 4 ओनली मेड इट Yeah. थ्रू द टेक्निकल राउंड. ओके. एंड Yeah, ऑफर exactly. आपको ऑफर कितने टाइम बाद आया? Around 2 months. Yeah. 2 मंथ्स के बाद. सो दैट वाज लाइक आफ्टर योर ग्रेजुएशन और लाइक 6 सेमेस्टर After में? my graduation. ओके. After my graduation. Yeah. एंड ऑफर लेटर आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग कितने टाइम बाद हुई? Just after 15 days. ओके. एंड दैट वाज लाइक द मैसूर कैंपस? Not exactly. So that time, second wave was going on. So ओके. training हमारी वैसे virtually हुई थी. But the main thing is like उनका काफी अच्छा training होता है, and basically they focus on many things, like uh, means you will learn many things in the period of those 3 months, I would say. ओके. So काफी अच्छा उनका curriculum होता है, and the training is best in Infosys. बट आपको दुख होगा हमेशा वो मैसूर कैंपस मिस हो गया. Yeah, that is the word. ओके. एंड ट्रेनिंग में लाइक कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या करिकुलम होता है बेसिक ओवरऑल? Yeah, yeah. So basically इनका भी एक तरह से we can say like college type ही structure होता है. So the training is divided into 4 FAs. Like in the first part, uh, हमें like हर FA में 2 subjects मिलते हैं. So in the first FA, we get DBMS plus 1 language. So language is like means everyone gets different according to their unit. So Infosys में basically बहुत सारी units हैं, like IBS, Java, and there are many. So I'm basically from the testing unit. So I got Java plus DBMS in my first FA, and after that exam होता है. उसमें basic criteria होता है 65%. स्कोर करना पड़ता है हमें. अगर 65 से कम है, so then you get a chance to like वापस से Reappear. देने का, या रीअपीयर. तो उसके बाद में भी अगर नहीं होता तो देन टर्मिनेशन हो जाता है. तो ओके. FA1 में बेसिकली DBMS प्लस जावा थी. उसके बाद एक फ्रेमवर्क था हाइबरनेट, जावा का. हाइबरनेट प्लस टेस्टिंग बेसिक्स, and then after in FA3 Selenium and UFT, and Okay. yeah, in the FA4 basically there was a capstone project. We can say it is similar to the major projects that we used to do in our college days. एंड ये सब 3 महीने में ही लाइक कंप्लीट? Yeah. Okay. So basically 15 days का टाइम रहता है. एक FA अराउंड 15 to 20 days में कवर हो जाता है. एंड लाइक आपको कोई टीच करता है या फिर खुद ही प्री रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं आपके पास? नहीं, लाइव क्लासेस होती हैं, 9 to Okay. 5 चलती है.
So it Okay. is मतलब पूरा वो कॉलेज वाला वाइब आता है 3 मंथ. Okay. तो एंड आपके लाइक बैच में कितने बंदे थे इन्फोसिस में, कितने की लाइव क्लासेस चलती थी? 120 के अराउंड. So in 120. every batch there are around 115 to 120 20 people. एंड किसी का लाइक ऐसा पॉसिबल हुआ था लाइक आपके बैच में कि कोई कंप्लीट ना कर पाया हो? Not exactly. Actually, we got a pre-release that time because ओके. बहुत ज़्यादा डिमांड थी उस टाइम. So हम्म. just after giving FA2, we got हम्म. a pre-release. So everyone like जो फेल भी हो गए थे इनिशियल एफएज में FA1 FA2 में, तो उनको भी रिलीज मिल गया था. ओके, सो यू गाइस गॉट लकी. या वी कैन से. बट आपने बताया था कि आपने कॉलेज में लाइक टेस्टिंग का आपको शायद कुछ भी लाइक आपने टेस्टिंग रिलेटेड इंटरव्यू नहीं दिया था, दैट वाज मोर ऑफ अ डेवलपमेंट या. लाइक जावा, एंड आपने हम्म. बताया था हम्म. मर्न आपने भी हम्म. किया था. तो फिर आपको हम्म. टेस्टिंग वाला प्रोजेक्ट कैसे लाइक जो मॉड्यूल है वो तो कैसे? सो ये कम्प्लीटली रैंडम होता है. दैट ओके. इज लाइक हमारा कुछ कंट्रोल नहीं रहता उस पे. सो ओके. ये रैंडमली एलोकेट होती है यूनिट्स. सो या आई गॉट द IBS जावा यूनिट विच इज बेसिकली मोर इनटू द टेस्टिंग पार्ट. एंड टेस्टिंग सीखने के बाद आपको कितना लाइक यहाँ पे मजा आया? एंड या द जर्नी इज ग्रेट. लाइक आई गॉट अ गुड क्लाइंट. लाइक आई एम सॉरी, लाइक आई एम नॉट श्योर वेदर मैं नाम ले सकता हूँ या नहीं. नहीं नहीं, बट नाम बेसिकली मत आई एम लीजिए. वर्क. या ओके इट्स ओके. ओके इफ यू डोंट टेक द नेम. So it is basically a good product-based startup. Sorry, not startup. It is a very big organization. ऑर्गेनाइजेशन. So yeah, yeah. So yeah, so learning is great, and the work is also good. We are doing both manual and little bit of automation there. एंड Yeah, जब आपका ट्रेनिंग चल रही थी तब कितना स्टाइपेंड था वहाँ पे? around in hand, I would say 15 to 16K ओके. at the time of training. After that, you get an increment of 2,000, I think. ओके. Uh, so basically, you get around 17 to 18 after ओके. that. ओके. But I'm doing the second shift, second day shift. So there are some extra allowances. I would say ओके. 5,000, 6,000, 6,000 extra. So ओके. yeah. एंड यहाँ पे लाइक कुछ एक बॉन्ड पीरियड भी है लाइक, अगर Yeah. आपने ट्रेनिंग की है तो आपको 1 कितना year. बॉन्ड लाइक 1 ईयर बॉन्ड? 1 year. 1 year. ओके. एंड रिसेंटली भी न्यूज आई थी लाइक कि आप इन्फोसिस में हो तो आप विप्रो ज्वाइन नहीं कर सकते या सेम क्लाइंट, तो एज सच आपको कुछ ऐसा नॉलेज है? Not exactly, means there is a non-competent agreement that we have to sign. But in that they basically say that you cannot join our client. Like ओके. अभी मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, जिस क्लाइंट के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, सो मैं इन्फोसिस लीव करके उनको ज्वाइन नहीं कर सकता. इट हाँ, इज नॉट ये लाइक कि. नॉन, या यहाँ ये चीज हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है कि द क्लाइंट यू आर वर्किंग फॉर, या यू कैन नॉट जॉइन देम मे बी फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर दैट लाइक आप 2-3 साल या बाद ज्वाइन कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू. सिक्स मंथ्स का रहता है इन्फोसिस में. आफ्टर 6 months यू कैन ज्वाइन. So, ओके. so I also heard that news. So basically, it was a misunderstanding. So this was the main clause. Like आप अपने client को join नहीं कर सकते. It's not like कि अपने competitors को नहीं कर सकते. Like ओके. many of my friends join Wipro and TCS, ओके. Cognizant, ओके. and yeah, ओके. recently they एंड joined. अगर इस टाइम कोई बंदा सेकेंड ईयर में है या उसने जस्ट अपना बीसीए या बीएससी स्टार्ट किया जर्नी, तो उसको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? इफ बिकॉज जो बंदे बीसीए करते हैं उनका लाइक इमीडिएट टारगेट तो हम्म. यही रहता है कि यार एक जॉब लाइक, बिकॉज विप्रो Yeah. काफी मास हायरिंग करता है एंड इनफी, हम्म. तो लाइक उसको आप उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? हम्म. सो या आई वुड से कि स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. फर्स्ट थिंग तो वही है कि मतलब एक्सप्लोर करो अपने इनिशियल डेज में. डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में वर्क करो. लाइक आई वर्कड इन लाइक एंड्रॉइड डेवलपमेंट आल्सो इन वेब हम्म. डेव, एंड बैकएंड में भी मैंने काफी काम करा जावा में. सो या आई हम्म. एक्सप्लोर्ड इन लाइक एवरी फील्ड. तो या फिर उसके बाद में आपको एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप किस में कर सकते हो अच्छे से. So it is not related to job. Yeah, it is more like, yeah, you are doing it for yourself. So एग्जैक्टली. first thing is that like you should more focus on your development skills. And I would say एक primary language तो होनी चाहिए जो आपको आनी चाहिए. No matter what, like you should know at least one programming language. So
दैट इज नॉट लाइक कि आपको जावा ही सीखना है, पाइथन ही सीखना है. It is more up to you. I would say learn anything, but do it properly. Yeah, If you exactly. like industry standards के according, you should learn Java. Mm-hmm. It will help you. So yeah, so I learned Java initially, and काफी free resources हैं YouTube पे. Initially थोड़ा सा आपको problem आएगी अगर आपका experience नहीं है पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. इफ योर फर्स्ट लैंग्वेज इज जावा, देन थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. बट आई वुड से जावा इज वेरी लाइक वेरी गुड लैंग्वेज. तो या जावा आपको सीखनी चाहिए वैसे. आई एम नॉट सेइंग कि जावा ही सीखो, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. एंड जावा के साथ थोड़ा डीएसए टिपिकल हो जाता है. इफ यू आर गोइंग इनटू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड दैट स्टफ, देन आई वुड से सी प्लस प्लस, बिकॉज जावा के थ्रू थोड़ा हो जाता है, एंड जावा का कम्युनिटी बेस भी थोड़ा लो है. Mm-hmm. बट if you want to get a job and placement के लिए prepare कर रहे हो, then I would say anything, do anything, but do it properly. And after that, the best way to master a language is like problem solving. So Exactly. I solved many problems on many platforms. Like initially, there is a website called SitesBay. वहाँ पे Mm. काफी basics program है. So you should solve around 20 to 25 questions from there. उससे आपको काफी confidence आ जाएगा initially. क्योंकि काफी इजी प्रोग्राम्स रहते हैं बेसिकली. आपको मतलब अच्छा हैंड्स ऑन हो जाएगा वहां से. उसके बाद में आई वुड से यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग द प्रोग्रामिंग सेक्शन इन हैकर रैंक. तो वहाँ पे प्रोफिशिएंसी गेन करो अराउंड 4-5 स्टार के अराउंड. अगर आप हो जाओगे तो Mm-hmm. या आपको खुद को लगने लगेगा कि हाँ काफी कॉन्फिडेंस आ गया है. ओके. एंड तो आपने कॉलेज में लाइक लेट्स से जावा या किसी और लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेशन किया था? नॉट एग्जैक्टली ओके. सर्टिफिकेशन नहीं करा मैंने. बट हम्म. I did some Udemy प्रैक्टिस. courses. Not in ओके. Yeah, practice is the main thing. But हम्म. I also enrolled in some Udemy courses, not for हम्म. Java, for the web dev part. I enrolled in that. There is one creator, Angela Yu. एंजिला तो यू, उनका या काफी एक या आई उनका आल्सो काफी फॉलो एक द सेम पॉपुलर कोर्स. कोर्स है. हाँ. या सो कैंप. उनका काफी अच्छा कोर्स है वेब डेव पे. एक्चुअली उनके तो दो बहुत ही अच्छे कोर्स हैं, एक तो वेब डेवलपमेंट वाला एंड एक वो पाइथन वाला, 100 डेज ऑफ पाइथन, पाइथन. राइट राइट वो राइट बहुत ही राइट भयंकर कोर्स है. या तो एंड अगर मैंने वो करा था. एंड सबसे बेस्ट पार्ट है यूडेमी कोर्सेज की कि आप उन्हें लाइक 400-500 में परचेज कर सकते हो. एंड दैट 100 डेज ऑफ एग्जैक्टली. लाइक पाइथन आप आराम से लाइक एक सेमेस्टर में एक अपना टाइम लो एंड जो वो बता रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस करो, एंड दैट इज लाइक मोर देन इनफ. एंड एट द एंड आपके या पास एक फ्रेमवर्क हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट हो जाएगा दिखाने के लिए. तो आपका रिज्यूमे में भी वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि ये आपने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है. तो मैं बहुत ही हाईली रिकमेंड करूंगा ये, मतलब रिस्पेक्टिव ऑफ बीसीए बीटेक, ये बहुत ही लाइक हाईली रेटेड कोर्स है. एंड मैं इस लिंक इस लाइक कोर्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो. एंड आपके कॉलेज में आपने कौन सी लैंग्वेज थी, लाइक जो सब्जेक्ट एक लैंग्वेज होती है लाइक सी और सी सो प्लस डिफरेंट. प्लस? हाँ हाँ, इनिशियल सेमेस्टर्स में सी प्लस प्लस थी. फर्स्ट सेम में हम्म. सी थी. सेकंड में सी प्लस प्लस आई. फिर थर्ड सेम में वी गॉट इंट्रोड्यूस टू जावा. आफ्टर दैट बैक एंड पार्ट स्टार्ट हुआ. इन फोर्थ हम्म. सेम वी गॉट नोड जेएस एंड एडवांस जावा, लाइक मोर लाइक सर्वलेट्स एंड ऑल. तो ये आपके कॉलेज का ही सर्वर साइड. करिकुलम था या आपने अलग से या लाइक ये पढ़ा? कॉलेज का नो नो करिकुलम लाइक ये यूनिवर्सिटी का? कॉल कॉल या यूनिवर्सिटी का सो करिकुलम. कॉलेज में या सो यूनिवर्सिटी में भी काफी मतलब अच्छे इवेंट्स होते थे. हैकाथॉन हम्म. एंड सम गुड कॉन्टेस्ट, प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट. सो मैंने वहाँ पे भी काफी पार्टिसिपेट करा. तो ग्रेट. वहाँ पे वहाँ से काफी अच्छा मतलब वो कॉन्फिडेंस मिला. तो दैट इज द मेन थिंग. हैंड्स ऑन होना बहुत जरूरी है, आई वुड बिल्कुल. से. And the main thing is like in my college days, I focus more on the development part. So मेरा हम्म. वो logic building वाला thing थोड़ा weak था. तो हम्म. वो मैंने एंड में आके फाइनल सेम में आके प्रिपेयर करा. लाइक जावा मेरी ठीक थी, बट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत डीएसए एंड ऑल आना जरूरी है. सो ओके. वो मैंने मेरे लास्ट में स्टार्ट करा 6 सेम में. सो बेसिकली ओके. इट टुक मी अराउंड 1 or 2 months. मैंने हैकर रैंक पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन होता है, सो बेसिकली वो
थोड़ा it is more on algorithmic and data structure side. So मैंने वो भी solve करा. So to be on safer side, you should also solve some good algorithmic questions on एंड different आपने platforms like Geeks or आपने वो जो डेवलपमेंट कॉलेज टाइम में किया वो आपको अब आज टेस्टिंग वाले फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में कितना हेल्प कर रहा है? Yeah, it is helping, but yeah, मतलब मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस तो काम आता ही है, बट यहाँ पे थोड़ा मैनुअल है एंड ओके ऑटोमेशन भी है, बट इट इज लाइक बहुत ही मिनिमल है. ओके. So I'm still like, मेंटेनेंस, yeah, लाइक आपका ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बना हुआ है, mhm, आपको उसको सिर्फ मेंटेन करना है yeah, एंड रन करना है yeah, अपने yeah, सूट्स वगैरह. ओके. mhm, mhm, एंड लाइक वन लास्ट क्वेश्चन, दैट अगर किसी बंदे का या किसी भी स्टूडेंट का कॉलेज के बाद प्लेसमेंट नहीं होता है तो उन्हें लाइक mhm, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए एंड कैसे लाइक अप्रोच करना चाहिए? mhm. So yeah, means अगर आपका नहीं हो रहा है, so like you should more focus on the dev part. आपको अपना resume थोड़ा सा strong करना पड़ेगा. Like freshers जब होते हैं लोग, तो उनको थोड़ा अपना डेवलपमेंट स्किल्स इंप्रूव करने चाहिए. अपने रेज्यूमे में बहुत ज़्यादा थोड़े एटलीस्ट थोड़े प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स डालने चाहिए, तो बिल्कुल. जिससे एक इम्पैक्ट क्रिएट हो. एंड यू शुड लाइक बहुत सारे मतलब है, अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक naukri.com, एंड वहाँ पे आप अप्लाई करना स्टार्ट करिए. लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच करिए, रेफरल्स लीजिए. बिल्कुल. सो आई वुड से ये अगर आप लाइक डेली 50 कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, सो 2-3 कंपनी से डेफिनेटली कॉल आएगा. बिल्कुल. तो हम्म. सो ऑफ अब ऑफ जितना कैंपस में थोड़ा ये सीन रहता है. या गो अहेड. या सो ऑफ कैंपस में थोड़ा ये सीन रहता है कि बेसिकली आपका कोई प्लेसमेंट सेल नहीं रहता. फिर ऑन कैंपस हाँ में प्लेसमेंट सेल इज देयर टू हेल्प यू आउट, बट हाँ. ऑफ कैंपस में आपको खुद का वो क्रिएट करना पड़ता है. बिल्कुल बिल्कुल. सो दैट इज द मेन थिंग. सो वो तो है ही कि आपको बल्क में अप्लाई करना पड़ेगा सब जगह, बट हम्म. या डेफिनेटली हो जाएगा. हाँ. Means, एंड अगर आप मेरा लाइक पर्सनल 50 एक्सपीरियंस है. 50 ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर रहे हो एंड आपको तब भी कॉल नहीं आ रही, दैट मीन्स आपके रेज्यूमे में कहीं ना कहीं इशू है. तो या इसलिए मैंने ऑलरेडी एक डिफरेंट वीडियो बनाया हुआ है कि आप रेज्यूमे फॉर फ्रेशर, कि आप बिल्कुल स्क्रैच से अपना रेज्यूमे कैसे बिल्डअप कर सकते हो एंड आप क्या क्या वहाँ पे अपने स्किल्स डाल सकते हो. तो थैंक यू अभिज्ञान. एंड गो वन अहेड. मोर थिंग आई वांट टू ऐड. या सो इन द सर्विस बेस्ड कंपनीज, एप्टीट्यूड भी काफी इंपॉर्टेंट होता है. लाइक पीपल जनरली इग्नोर, वो टाइम नहीं देते एप्टीट्यूड में, प्रिपेयर करने में टाइम नहीं देते. एंड आजकल तो लाइक दे आर मोर फोकसिंग ऑन द चीटिंग थिंग, एंड टेलीग्राम पे काफी चलता है. हाँ तो मतलब वो चीज तो नहीं करनी चाहिए. आई वुड से एप्टीट्यूड पे भी थोड़ा सा ध्यान दो. बिल्कुल. 1-2 1-2 मंथ्स आप थोड़ा सा वहां पे भी डालो. काफी हम्म. अच्छे रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे, फ्रीली अवेलेबल हैं. हम्म. And the best way to practice is like you should download like a curriculum. काफी जगह अवेलेबल होगा, like basic कि important aptitude topics. तो हम्म. आप नोट डाउन करिए एंड उनको बेसिकली सॉल्व करिए. इंडिया बिक्स पे काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, वहां से सॉल्व ओके. करिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं. सो हम्म. एप्टीट्यूड इज द मेन थिंग, बिकॉज मेरे टाइम भी मतलब जनरली होता ही है कि सर्विस बेस्ड में ना ज्यादा फिल्टरिंग होती है ऑनलाइन असेसमेंट्स के टाइम ही. बिल्कुल. इंटरव्यूज में वो नहीं करते रिजेक्ट. हम्म. लाइक 70-80% फिल्टरिंग फर्स्ट राउंड में ही हो जाती है हाँ, ऑनलाइन असेसमेंट के बिकॉज टाइम. लेट्स से उन्हें 100 बंदे उठाने हैं एंड 500 एप्लीकेशंस आ गई, तो वो 500 का तो इंटरव्यू नहीं ले सकते, दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. तो फिर वो फिल्टरिंग वहां पे ज्यादा होती है. तो अगर आपने अपना एप्टीट्यूड वाला जो सीन है वो सॉर्ट आउट कर लिया, देन आई थिंक अगर आप बेसिक जावा एंड डीएसए भी करोगे देन देर आर हाई चांसेस कि आप कन्वर्ट कर लोगे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो या थैंक यू अभिज्ञान फॉर शेयरिंग थैंक यू ऑल दिस नॉलेज. थैंक यू सर. थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. ग्रेट. या एंड मैं अभिज्ञान का लिंक्डइन नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. सो आफ्टर दिस आल्सो इफ एनीवन वांट्स टू know about different things, so he can like he or she can contact him. So thank you once again Abhigyan. थैंक यू